ठीक है, ये हो गया। तो कैटेगरी जाने से पहले एक डेमो ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे तो ये कैटेगरीज के जाने से पहले एक सैम्पल प्रोग्राम कर लेते हैं। सैम्पल प्रोग्राम टू शो एक्सेप्शन है, वो करना, फिर हमको समझ में आएगा कैटेगरीज क्या है। सो कहाँ है तुम लोग का एक्लिप्स? ये है। तो कौन सा डे है आज? डे 12 ले लेते हैं। न्यू पैकेज और क्या बोलेंगे, जावा डे 12 एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। सो इसमें आ गया, एक नई क्लास बनाता हूँ मैं। मैसेज विजिबल राइट गाइस? यस, नो, मे बी visible, yeah. So I make a class test. Now I'll try to take a scanner. Okay, so let's try to take a simple example which we did. So integer. Okay, just try to display some normal data. Hi, line number 1, any problem? Line number 2, any problem? But line number 3, any problem? Yes, no, maybe बोलते रहो भाई कुछ ना कुछ। प्रॉब्लम कौन से लाइन पे आ रहा है अभी? लाइन नंबर 8 पे इशू है। कौन सा एक्सेप्शन फोरकास्ट कर रहे हैं आप लोग? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो विल इट डिस्प्ले मी द रिजल्ट, और रिजल्ट छोड़ो, विल इट डिस्प्ले मी वेलकम? वेलकम बी डिस्प्लेड? नो, राइट? द प्रोग्राम विल क्रैश बिफोर दैट ओनली। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन एंड नाउ सी द कंसोल। दिख रहा है? हाई आ गया, बाय आ गया। अब लाइन नंबर 8 पे इशू आ गया एक्सेप्शन, तो उसने ऑब्जेक्ट थ्रो करा कौन से क्लास का, कौन से पैकेज में, कौन से क्लास में, कौन से मेथड में, कौन से लाइन पे, और आगे का कोड का एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम क्रैश लैंड हो गया, राइट? क्योंकि एक्सेप्शन आ गया है ना। चलो अब एक और थोड़ा सा ढंग का एग्जांपल कर लेते हैं। अब रन करते हैं इसको। अब मैंने एंटर किया 10 और 5। एनी एक्सेप्शन एट दिस लाइन? एनी एक्सेप्शन एट दिस लाइन? एट दिस लाइन? So what will be the answer now? First, before to what? So welcome to, right? To, right? Okay, now let me run 10 and 0. Now, at which line? So see, at line number 13, in this method, in this class, in this package, this has occurred, okay? Okay, let me run again now. If I enter Apple over here now, now which exception do you think is going to occur from this hierarchy?
Input mismatch, right? At what line? And will it ask me for the denominator? सी देखो, जैसे एंटर किया एक्सेप्शन आ गया, कौन सा? इनपुट मिसमैच इस पैकेज के, इस क्लास के, इस मेथड के, इस लाइन पे, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, राइट? समझ में आ रहा तुम लोग को? अब हैव यू ऑल एवर witnessed the scenario wherein there is a no entry? I just witnessed it last week on FC Road. So let's say this is the main road and this is some secondary road which leads over here, and on a small board they have written over here no entry. Okay, at times you don't even see that board and you take a right turn. So where does the cop stand? Where does the policeman stand? Does he stand here or does he stand deep inside the no entry? Where do you think? Position A or position B? Is it? Are you sure? Cop stand over here or does he stand over here? With position. If he stands over here, then nobody will go in this. Stand a bit further, that people fall in the trap and they come inside and then they can catch them. Didn't you all observe this? Okay. So what happens is the warning, there is no, okay, the board is now, let's say the board is faded away. This board, it's been around 1 year, so it has faced lot of sunlight, lot of dust, lot of rain, and the marking of this board have faded away. Now is there any warning which says don't take a right turn? No. And you do not know that, so you take a right turn and then you will be caught, right? And will they listen to any of your arguments? Will they listen to any of your arguments that I did not know and this and that? So you will be trapped, correct? So here I am directly saying that, don't you see, this is clearly saying that this will lead to an exception? Isn't this clearly saying this will lead to an exception? Line number 13. But is my program warning me? Is my program warning me about the exception? It is only at the run time that I come to know about the exception. So it is only at the run time that I come to know that the exception has occurred. See, but the compiler is not warning me, correct? So okay, I'll give you a better example. Things should fall into place then. My next topic is categories of exception. What is my next topic? Okay, so now I guess the 12th board exams have started, correct? And the 10th board exam will start next month. So let's say it's the month of March and the 10th board exams are going on. 10th standard, what is going on? Which exam? Not class test, not semester test, but board exam. So the board exam is a landmark event in every student's life, and it is an equally landmark event in the parents' life also. The day when the child appears for the board exam. Yes or no? So there is this candidate Alice. So today is her first paper and she will be appearing for her board exam. So this is her house. So where is Alice right now? At, and where do we give our exam?
at the exam center. So then Alice's mom is also there at home. So the mom is an experienced person because she has given many board exams. So she knows what situation might arise in the board exam center. And Alice has not given any competitive exam yet, so she isn't aware of what all difficulties can come at the exam center. So Alice leaves the house at 8 a.m. and the exam starts at 9 a.m. So it is 7:30 a.m. So where is Alice? Compile time or run time? Compile time. And this is Alice and this is Alice's mother. Okay. So before leaving home, Alice's mom, as she is experienced, she knows that there might be an exception in the exam hall which might occur, ink over exception. Which exception? So it is a wanted or unwanted event occurring at and disturbing the normal flow of program execution. So now if you run out of ink in the exam hall and the instructor has given instructions, no sharing, no borrowing, will they allow you to borrow a spare pen? And if you are caught asking for a spare pen, the supervisor might think that you are cheating and he might rusticate you from the exam hall. So it is an unwanted event occurring at runtime disturbing the normal flow of program execution. So Alice's mom, as she knows that this exception might occur and she has seen students, so she tells Alice, have you taken a spare pen? Have you taken a extra pen? So Alice says, yes mother, I have taken an extra pen. She doesn't trust Alice. She says, show it to me. Show me your pencil box. As long as Alice doesn't show the pencil box to the mother and the mother is convinced that she has taken the pen, she will not ask Alice to leave the house. When will she ask Alice to leave the house? When the mother is convinced that she has taken an extra pen, right? Okay, the mother also knows that this also exception might occur in the exam hall. Which exception? So then you will be asked to go to the principal, write an application, get it signed. Principal is in a meeting, you have to wait outside. And in the exam hall, one second is precious. So wasting 15-20 minutes is a very big loss. So the mother knows that this exception might occur. Where will this exception occur? At the exam center. But the mother is warning where? Where is the mother warning? Compile time, that have you taken your hall ticket? Alice says yes mother, I have taken. She is not convinced. She says what? So unless and until she is convinced that she has taken, she will not release Alice from the house. Once she is satisfied, then she will wish Alice all the best, and then at 8 o'clock Alice will leave the house, right? Here Alice is the program and mother is the compiler. Who is Alice and who's the mom? So those exception about which the compiler will warn at compile time, that such exceptions may occur at runtime, and unless and until you show the compiler that you have taken some exception handling mechanism to overcome them, the compiler will not compile the code only. So is the compiler now warning us about the arithmetic exception? Is it not warning, right? So those exceptions which are warned by the compiler at compile time are called as checked exception. Are called as what?
and those exceptions which are not warned by the compiler are called as unchecked exceptions. Hello. Those exceptions which are warned by the compiler at what time? Compile time. That they may occur at what time? Exception occur होता है हमेशा. ये जो एक्सेप्शन है, इंक ओवर एक्सेप्शन, ऑल टिकट मिसिंग, ये अकर कहाँ होंगे? रन टाइम पे ना. बट वॉन कौन कर रहा है? मॉम. मॉम वॉन कब कर रही है? कंपाइल टाइम पे भी. सो दोज एक्सेप्शन आर कॉल्ड एज चेक्ड एक्सेप्शन. और दोज एक्सेप्शन विच आर नॉट वॉन्ट बाय द कंपाइलर, कि भाई पेपर लेट स्टार्ट हो गया, एग्जाम डिले एक्सेप्शन. अब ये डज द मॉम नो कि ये होने वाला है डिले पेपर? तो विल द मॉम वॉर्न अबाउट दिस एक्सेप्शन? तो उनको बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन. क्या बोलते हैं उनको? सो विच आर चेक्ड एक्सेप्शन, विच आर अनचेक्ड एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस वार्न्ड बाय द कंपाइलर. क्या बोलेंगे? एक्सेप्शंस वार्न्ड बाय द compiler at what time? Compile time are called as and not warned. पर एक्सेप्शन अकर कहाँ होंगे हमेशा? चेक्ड हो या अनचेक्ड हो, कहाँ होंगे? रन टाइम पे होंगे. ठीक है ना? सो यहां पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन है? चेक्ड है कि अनचेक्ड है? अनचेक्ड है. तो इसका सिंपल सा रूल ये है, जो एक्सेप्शन डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं वो सब चेक्ड एक्सेप्शन है. ये ऑरेंज वाले कौन है? सारे सारे ऑरेंज वाले क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन. ठीक है. और ये जो जितने रन टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं वो सारे कौन है? अनचेक्ड. जितने रन टाइम के चिल्ड्रन है वो सारे कौन है? बोलो भाई. अनचेक्ड है. तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन किसका चाइल्ड है? तो वो क्या है इसके लिए? क्या है? समझ में आया? समझ में आया कैटेगरीज क्या है? देखो, अब अगर मैं कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन का कोड लिखूं, जैसे आयो एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन? तो हम लोग इनपुट लेने के लिए स्कैनर भी यूज कर सकते हैं और बफर रीडर भी यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? बफर रीडर. ठीक है. बी आर इज न्यू बफर रीडर. ठीक है. और न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर वो लेगा सिस्टम डॉट इन से. ये उसका सिंटैक्स है. ठीक है. तो ये बफर रीडर थ्रोज आयो एक्सेप्शन. इसके जितने मेथड्स हैं वो क्या थ्रो करते हैं? क्या थ्रो करते हैं वो? उसमें फंक्शन रीड लाइन. फंक्शन क्या है? बी आर डॉट रीड लाइन. ठीक है. अब ये मुझे स्ट्रिंग देगा. क्या देगा ये? तो मैं क्या कर दूंगा? उसको पास एंड कर दूंगा. ओके. पर अब देखो, जैसे ही मैं रीड लाइन करूंगा तो आप देखना कि एरर आ गया. आ गया. ये लाल लाइन क्यों आ गई? बोलो भाई. लाल लाइन क्यों आ गई? क्योंकि बफर रीडर के मेथड क्या थ्रो करते हैं? आयो. और आयो एक्सेप्शन कौन से कैटेगरी में है? चेक्ड में. तो
जब तक आप कंपाइलर को बताएंगे नहीं कि आपने हैंडलिंग मैकेनिज्म लिया है, तब तक वो कोड कंपाइल ही नहीं करेगा। दिख रहा है? तो वो बोल रहा है कि इसको पहले मुझे दिखाओ आपने कैसे हैंडल किया है, तो फिर मुझे उसको ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, जैसे अगर अभी मैं यहाँ एक नई क्लास बनाता हूँ, ठीक है, test2, ठीक है। सो पुराना वाला जो कोड है वो हम लोग यहाँ ले लेते हैं टेस्ट में। स्कैनर वाला कोड है, यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा निकाल देता हूँ यहाँ से। तो क्या होगा? sc डॉट, बोलो, और sc डॉट, सही है। अब अगर यहाँ पर अगर वो एंटर कर देता है 0 डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? तो जो कोड आपका एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है उसको ट्राई में लिखने का, किसमें लिखने का? और अगर एक्सेप्शन आ जाए तो उसको कैच कर लेने का। ये ब्लॉक है, तो कौन सा आ रहा है एक्सेप्शन इसमें, फिर वो उसको हैंडल कर लेगा। तो क्या बोल देंगे? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। अब हैंडल हो जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। तो वेलकम आपको दिखा देगा, वो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, मतलब ये ऐसा है। तो अगर आपको हैंडलिंग करना है एक्सेप्शन, तो उसे ट्राई कैच में लिख देने का। जो कोड थ्रो करेगा एक्सेप्शन वो ट्राई में आएगा। आई विल गो इन डिटेल अबाउट दिस, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू। तो राइट क्लिक नाउ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो टेस्ट 1 में इशू आ रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर वापस आएंगे उसके ऊपर। सेव ऑल कर रहा हूँ, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इंटर न्यूमरेटर 10, इंटर न्यूमरेटर 0। तो कौन सा आया एक्सेप्शन इधर लाइन नंबर 18 पे? बोलो। तो उसका ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट करेगा? कैन दिस रेफरेंस पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन? कैन दिस रेफरेंस पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन? अरे ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? अरिथमेटिक ई इक्वल्स टू न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऑब्जेक्ट किसका थ्रो हुआ है? उसको पॉइंट कौन सा रेफरेंस कर रहा है? तो पॉसिबल है ना। तो इस कैच में आ जाएगा और क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? स्क्रीन पे, और विल द प्रोग्राम क्रैश लैंड? अभी अभी हैंडल हो गया ना एक्सेप्शन, अभी हैंडल हो गया ना एक्सेप्शन, तो प्रोग्राम विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, है ना, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन है ना। तो क्या विल इट शो वेलकम? तो आउटपुट क्या आएगा अभी, बोलो। है ना। तो ऐसे ही अभी यहाँ पर टेस्ट 2 में आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई ये एक्सेप्शन आने वाला, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है वो? तो आपने इधर देखो कंपाइल कर नहीं रहा है, दिख रहा है 2 रेड डॉट दिखा रहा है। तो हो रहा है आपने क्या हैंडलिंग मैकेनिज्म लिया है। तो जब तक मैं इसको हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं दिखा दूं, ये मेरे कोड को कंपाइल करेगा ही नहीं। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तो फिक्र मत कर, मैंने कैच ले लिया है। कौन सा आ रहा है एक्सेप्शन? और मैंने ये हैंडलिंग मैकेनिज्म ले लिया है इनवैलिड। अब वो देखो वो कोड को कंपाइल कर देगा। अब कोड कंपाइल हो गया। क्यों कंपाइल कर रहा है अभी कोड वो?
क्योंकि जो एक्सेप्शन आ रहा था वो कौन सा आ रहा था, और आईओ एक्सेप्शन कौन से कैटेगरी में आता है, तो चेक्ड एक्सेप्शंस को वो क्या करेगा, अलग ट्रीट करेगा। जब तक आप उसको हैंडलिंग दिखाओगे नहीं मैकेनिज्म, वो कंपाइल ही नहीं करेगा। एक्सेप्शन आने वाला किधर है, रन टाइम पे आएगा ना एक्सेप्शन। तो अभी अगर मैं यहाँ पर 10 और 0 डालता हूँ, वो आने वाला रन टाइम पे ही है, बट क्या करेगा वो, और देखो ये कौन सा एक्सेप्शन आया अभी, ठीक आया ना, तो उसके बारे में वार्न नहीं करता है वो। तो फिर हम एक और कैच लगा सकते थे यहाँ पर कि अगर ये भी आ जाए तो इसको भी हैंडल कर लो, इनवैलिड डिनोमिनेटर, ठीक है। पर वो जो कि अनचेक था, इसके लिए उसके लिए उसको वार्न नहीं किया गया था। अब अपन ने इसको हैंडल कर लिए हैं, तो अब ये भी हैंडल हो जाएगा, दिख रहा है। तो किसको समझ में आया दो टाइप के एक्सेप्शन, चेक्ड और अनचेक्ड, बोलो। और उनका प्रूफ क्या है, जो एक्सेप्शन डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं वो चेक्ड है, और जो रन टाइम को कर रहे हैं वो अनचेक्ड है। चेक्ड एक्सेप्शन कंपाइलर विल स्ट्रिक्टली check and warn you that this exception might occur, and unless and until you show the compiler the handling mechanism, it will not compile the code. And unchecked exception will not be warned. See यहाँ पर आ रहा है unchecked, पर वो कोई warn नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया।